Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. So today in this class we are going to discuss social science chapter number 2 in history part, that is journey from prevent man to settle life. जर्नी फ्रॉम प्रिवेंट मैन, प्रिवेंट मतलब अर्ली, जिसको हम अर्ली मैन बोलते हैं, टू सेटल लाइफ. व्हाट इज सेटल्ड? सेटल्ड मतलब फिक्स्ड लाइफ. ओके, you know very well that is we talked about the early men, so they didn't have the proper place to live, what to eat, where to live. They didn't have anything, so we'll have to learn here in this chapter journey from prevent मतलब early men to the settled life मतलब fixed life, modern life. Okay, so that we are going to learn here how can actually it is saying that हम लोग भी so early human है, उनसे ही बने हुए हैं. मॉडर्न मैन तो कैसे उन लोगों ने अपनी जर्नी है वो फील की, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास. Jaivir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, trucks, etc. So the situation he liked that Jaibir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in the train. मीन्स वो लोग गांधीनगर से जामनगर जा रहे थे ट्रेन से. He saw outside the train and he saw bullock cart, camel cart, rickshaw, bus, truck, etc. He asked his uncle, when did this transportation start? So transportation मतलब going one place to another place. एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना. He asked his uncle, when did the transportation started? His uncle put his hand in his back and said, train started in our country approximately 150 years back. So his uncle gave the answer to him that the train started in our country approximately मतलब नियर बाय 150 years. The train has started in our country. Among all the vehicles which you see on the road, the bullock cart is oldest, so that is also very important. What which vehicles is the oldest vehicle before it? Thousands of years back, men didn't have any means of transportation, and if we are talking about early human, so before thousands of years they didn't have any transportation. लोगों को के पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी. ही यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द फुट. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे तो नहीं था कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जा रहे थे, तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जा रहे थे. नाउ प्रिमेटिव मेन टू नोमेडिक लाइफ मतलब जिसके पास रहने का फिक्स्ड प्लेस नहीं हो, रहने के लिए नो फिक्स्ड प्लेस फॉर लिविंग. ओके, सो दैट इज नोमेडिक. प्रिमेटिव मेन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्डन टाइम, बहुत पुराने ज़माने के लोग. अप्रोक्सीमेटली 20 लाख years ago, he led a nomadic life and spent his time by hunting. It's very important that before 20 lakhs years ago, ही मतलब कौन, प्रिवेंट मैन, लीड करना मतलब कैसे स्पेंड करते थे नोमेडिक लाइफ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नोमेडिक मीन्स नो फिक्स्ड प्लेस फॉर लिविंग एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग. हाउ दे स्पेंड हिज टाइम? सो बाय हंटिंग. हंटिंग करके मतलब शिकार करके वो लोग अपने टाइम स्पेंड करते थे. दिस स्टेज इज कॉल्ड हंटेड गेदर. Now, before 20 lakhs years ago, they didn't have the place to live and they spent their time by hunting and gathering. Hunting मतलब शिकार करना and gather मतलब साथ में रहना. He used to gather his food by the
gathered the food by hunting animals like deer, fish, and so. How they gather their food? So they gathered the food by hunting animals. कौन से animals? तो deer, fishes, birds, etc. Other than they collect roots and fruits for their food. The hunted the animal like deer, fishes, birds, and all that things. Not only that, but they collect it fruits and even fruits for their food. Means from here the question is that which kind of food the early or prevent man used to take. So what they used to take? Deer, fishes, birds, roots, fruits, and other food. This stage of human is called hunter and gatherers. It was not that easy. Sometimes wild animals attacked them. क्या होता था, फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स रहते थे जो कभी कभी उनके ऊपर अटैक भी कर देते थे. वाइल्ड एनिमल्स लिविंग देयर लाइक लायन, टाइगर. डेफिनेटली वहाँ पर क्या होता होगा कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते होंगे वे उन लोगों पे अटैक करते थे. मोर एवर सम ऑफ द एनिमल्स वेर फास्ट इन रनिंग. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जंगल और फॉरेस्ट की, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि वाइल्ड एनिमल्स आर लिविंग देयर लाइक लायन, चीता, ओके. एंड सम ऑफ एनिमल्स वेर फास्ट इन रनिंग. बहुत फास्ट रनिंग करने वाले थे. इट वॉज नॉट ईजी फॉर द प्रिवेंट मैन टू कैच देम. सो डेफिनेटली मैन की रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी होगी in compared to the other wild animals. So it was not easy for the prevent men to catch them because they were running too fast. So it was very difficult for the prevent men to catch the animals. Thus primitive men used to wander from one place to another in search of food. It is also very important thing, okay, why the primitive men wander from one place to another place so in search of food. It's very important. फूड के लिए सो लोग एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में वंडर करते थे. सो फूड इज प्रायोरिटी. हम लोग होम में, यहाँ तो हाउस की बात नहीं कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज he learned which fruit and roots to eat and which what to eat, as many of them were poisonous. So as he gained the knowledge that which fruits and roots they eat, मतलब कौन से फ्रूट्स को खा सकते हैं और किसे गरम करके खा सकते हैं, और कौन पॉइजनस मतलब जहरीली है जिसको नहीं खानी चाहिए, ऐसा. इफ दे ईट इट्स वेरी हार्मफुल. सो आफ्टर द टाइम पास्ट उन लोगों के पास उतनी भी नॉलेज नहीं थी. Animals like the deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive men used to wander from one place to another place in search of them. Definitely, deer, sheep, and goat, these three animals, they found that it was very easy to hunt. मतलब डियर को, शीप को, गोट को हंट करना एकदम इजी था उन लोगों के लिए जो जनरली उन लोगों के प्लेस में, जिसके लिए उन लोग जनरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वंडर करते थे. मोरेवर वाटर बीइंग इसेंशियल फॉर लाइफ, दे यूज टू सेटल नियर द sources of water. Water is very important and essential, you know. So on which place they settle? So they settle near the source of water. जहाँ पे उन लोगों को वाटर इजीली मिल जाए वैसे जगह में उन लोग रहना स्टार्ट किया. Now the next topic is place of human habitation of primitive men in India. Habitation मतलब living in a place. Okay, the primitive we had already discussed. जो early human होते थे वो archaeologist. So what is archaeologist? We have
ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर कि जो भी पुरानी टाइम की जो भी चीज़ें होती थी उनकी एविडेंस ही कलेक्ट करके उनकी स्टडी करते हैं, उससे वी कैन कंसिडर आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब मेक स्टडीज ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की जो स्टडी करने वाले हैं। देन कम्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मेक स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की जो स्टडी करने वाले हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक। Study of human, they are called anthropologists, and historians of the person who was studying about history have together found out many other place of habitation of primitive man to archaeologists, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस सारे ने मिलके ऐसी इंफॉर्मेशन फाइंड की कि जहाँ पर एज अ लिविंग प्लेस लोगों को अर्ली ह्यूमन को मिले। अलोंग विथ दे have also found out information about implements used by them. So implements means what? So implements mean tools, especially for outdoor work, especially ओके घर के बाहर, मतलब घर के बाहर जहाँ पर जो टूल्स यूज होते थे ऐसे को इम्प्लीमेंट्स कहा जाता था। उन लोगों को मिले थे, दे यूज्ड इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स, वेपन्स मतलब हथियार। वो लोग इसलिए टूल्स एंड हथियार का यूज करते थे जो स्टोन एंड वुड से बने होते थे। समटाइम्स दे इवन यूज इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स। So it's also very important that the implement or weapons were made of which things? So of three things, whether they were made with stone, woods, or rather they are made with the bones। तो वो कौन कौन सी चीज़ें से बनी होती थी? या तो वो स्टोन से बनी होती थी, या तो वुड से, या तो स्टोन से बनी होती थी। सिंस द लाइफ ऑफ हंटर गेदर्ड एंड wanderer are associated with stone technology, this time is called Paleolithic age। It is also very important question, okay, that definite defined the Paleolithic एज क्या थी? तो ये जो हंटर और गेदर थे एंड जो वंडरर लोग थे, उन लोगों ने स्टोन टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखा और इन टूल्स, वेपन्स को यूज करने लगे कि स्टोन से बने थे। सो दैट टाइम इज कॉल्ड पेलियोलिथिक एज। Now here you have some tools, or we can say implements, were made with the stones। You can see ये जो stone के use से सारे जो tools and implements बनी हैं उसकी फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यू कैन सी दे आर वेरी शार्प, एंड ये जो चीज़ें थी उसका यूज करके वो लोग क्या करते थे? हंटिंग के लिए यूज करते थे और एनिमल्स के को मारने के लिए, कट करने के लिए इन सारे टूल्स का वो यूज करते थे। द स्टोन्स वेर यूज टू कट द वेजिटेशन एंड टू शार्प द स्किन ऑफ एनिमल्स। टू स्क्रैप करना मतलब कट करना, फाड़ना, ओके, किसी काम के लिए यूज करते थे। तो कट द वेजिटेशन, फ्रूट उसके कट करने के लिए, या इवन कट द स्किन ऑफ एनिमल्स। प्रिमेटिव मैन यूज्ड पिल। नाउ व्हाट इज पिल? मतलब स्किन ऑफ फ्रूट्स और vegetables of the trees and skin of animals and covered their body। Important question is there, how they covered their body? So they use peel the trees and animals and cover their bodies. You will find that at many places of India, the primitive men might have lived. Few places are seen in the map, but there are evidence of their habits in many places in India. So here in the map, some places are there
जहाँ पर वो लोग रहते थे, यहाँ पर आपको रेड कलर में पैलेथोनिक प्लेसेस दिया हुआ है। तो भीम बाटिका दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। देन मेहरगढ़ जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, देन ये गंगा रिवर, कृष्णा रिवर, देन cave are shown to you, then here Kaveri river and all the things we are going to learn. Okay, फिर यहाँ पर मॉडर्न सिटी जो ब्लू स्टार्स में इंडिकेट किया है, तो यहाँ पर आपको दी है कोलकाता, मुंबई। सो दिस मैप शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट प्लेस जहाँ पर उन लोगों की एविडेंसी मिली है। They preferred to stay in good and large place where stone, wood and water were found. कहाँ पर रहना पसंद करते थे? सो द प्लेसेस इन गुड हो, लार्ज प्लेसेस हो, साथ में स्टोन्स मिले, वुड मिले और वाटर मिले। वाई दे यूज्ड स्टोन टू मेक द वेपन्स एंड टूल्स? तो वहाँ ही वो लोग फूड कलेक्ट करके सकते थे एंड वाटर दैट इज वेरी इसेंशियल। दे लिव्ड इन नेचुरल केव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर दे लिव्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। सो नेचुरल कैव्स वो लोग बातें नहीं बनाते नहीं थे, क्योंकि तब उन लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, वो लोग नेचुरल कैब में ही रहते थे। सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ एविडेंसी मिला है नेचुरल कैब की? तो विंध्या माउंटेन जो सेंट्रल इंडिया में है, वहाँ सच टाइप ऑफ प्लेसेस ऑल्सो बीन फाउंड इन रीजन ऑफ नर्मदा रिवर। और ऐसे एविडेंसी नर्मदा रिवर के अराउंड से भी मिला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्सरसाइज में यहाँ आपको दिया हुआ है कि भीम बैटिका विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन फाउंड विच was an excellent place of human habitation. It's very important। कौन से प्लेस में है जो ह्यूमन हैबिटेशन का एक्सीलेंट प्लेस एविडेंसी मिला है? सो दैट इज भीमबाटिका सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। In its cave, near about 500 images of birds, deers, wooden spears, trees, humans, etc., drawn by the primitive men, have been found, which are drawn with the help of natural color. ये जो कलर से किए हुए हैं वो कहाँ भीमबाटिका जो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश से, वहाँ से क्या मिला है? तो वहाँ से नियर बाई 500 इमेजेस मिले हैं। किसका? तो बर्ड्स का, डियर का, वुडन का, स्पेयर्स का, मतलब बहुत सारे ट्रीज का, ह्यूमन का, एक्सेट्रा। और कैसे ड्रॉ किया हुआ है? तो प्रिमेटिव मेन which have been found and it is colored with the natural color।